Shanji as a special addressee of the day, and also with us Madhukar Agarwal ji, the speaker of the day. So first of all, I welcome all the participants to this another technical session under the Golden Chacha program, an initiative by EIRC, where we are taking care of the 3 sessions a week, every alternative day, Monday, Wednesday, and Friday. And being Wednesday, we are again here from 5 to 6 p.m. And first of all, I welcome Vishnu sir and request him to have a addressee to all the audience as well as our speaker for the day, Madhukarji. Over to you, Vishnu sir. Thank you, Amit ji, for giving me this opportunity to address my virtual participants. Thanks for coordinating the session, and thanks Madhukar ji for coming and giving his consent to be one of the speaker today. We have started this Golden Charcha with the objective to give the maximum opportunity to the chartered accountants who are not only living in Kolkata but also living in eastern part of the India, as well as also in the part of country across the country and also across the world, so that we can connect them, we can get their experience, we can get their expertise, and our participant can get more and more knowledge to dispose of their duty, and they can work accordingly. So this is the initiative in which we are doing many other things, and many topics has been covered till now. And rightly Amiji told ki thrice in a week we are giving the opportunity. We have the target to complete phase 1 with golden 50 numbers of seminars. Phase 2 again 50, so that we can complete 101 seminars till I am in the institute as a chairman of the ERC. Yes, topic is very relevant. Section 73, 74. Although I can say with commitment that I am not expert in GST, so any words told about the GST will be wrong from my side. Yes, I am the chairman, but I am not the chairman of this GST, for which Madhukar ji here, and he will be, of course, deal very lightly, very properly. Further, I request all the participants, please join the ERC initiatives. We have taken 11 initiatives, and we also have the Golden Jubilee Conference on 21st, 22nd of November. So don't miss it. Register yourself, motivate others to register themselves, and also become the part of this vibrant ERC. We have circulated Google Forms. So please put up the Google Forms and be the part of ERC. With these remarks, thanks Amiji for calling there and for coordinating this session, and thanks Madhukarji for coming here. And thanks all participants who will join virtually. So thanks for coming here, and those who want to speak further as a speaker, please let us know so that we can also give the opportunity to them to come and speak on the platforms. Thank you so much, Amiji. Thank you so much, sir, for this wonderful address to the audience and the speaker of the day, and motivating us to participate in the EIIC in all the relevant portion, whether it's regional conference, whether this particular Golden Chacha program, or any of the initiative taken by the EIRC. Thank you so much, sir. So, without wasting further more time, I welcome the speaker of the day. Um, for this very relevant topic, and we will dive into a crucial area of GST and understand the interplay between the adjudication section 73, 74, and 74A. For guiding us through this complexity of this section, we are honored to have with us CA Madhukar Agarwal ji. Madhukar is a chartered accountant by profession, and he has ranked 2 in all Northeast when he qualified in January 2021. He is currently a partner in AM Agarwal and Associate based in Guwahati, where he specializes in GST advisory, litigation, compliance, and departmental representation. Throughout his career, Madhukar has successfully proceeded GST refund more than 25 crore and has represented various client authorities and appellate forum in both Assam and Delhi. Madhukar is also actively involved with the ICI, having anchored the ICI CA Student Conference, served as a treasurer ICASA, presented technical paper at ICI events, and even achieved runner-up in an interbranch ICI quiz. Renowned for his ability to transform complex GST provision into practical and easily understand the insight, Madhukar is a sought-after speaker for professional bodies and corporates. So we are privileged to have CA Madhukar Agarwal ji with us today to unravel the intricacies of the section 73, 74, 74A of the GST Act.
So let's give him a very warm welcome. Over to you, Madhukar Agarwal ji. Thank you, Amit, for such a warm welcome. Also, Vishnu sir, thank you so much. So now let's start the session. I hope everyone has joined. Yes, sir. Everyone has joined, and meanwhile, participant can join. There is no bar on joining in between, so they can join as Okay, an. sir. Okay, sir. So I'm starting the session. Let me share the screen. I hope sir screen is visible. Yeah, it is visible, sir. Okay. Okay. So I request every participants, everyone, very warm welcome. I request everyone to be uh, present in the chat box so that we can have an interactive session instead of just being a one-sided session. I request everyone, let's have an interactive session. The time is fine post lunch, but still I hope सबका चाय नाश्ता हो गया होगा. तो अब शुरू कर सकते हैं सेशन. तो let's start the session. Good evening to everyone. So today we are going to discuss, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 73, 74 एंड 74A. सर अभी तक तो जो हम लोग का सेक्शन चल रहा था दैट इज अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, दैट वाज सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74. बट सर फ्रॉम 24-25 ऑनवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, जो नया सेक्शन इनकॉर्पोरेट हुआ है हमारे जीएसटी में, दैट इज 74A. बट सर द पॉइंट इज जो 74A है दैट इज ऑलमोस्ट ए रेप्लिका ऑफ 73 एंड 74. सर कुछ टाइम लिमिट चेंज हो गई है बट रेस्ट एवरीथिंग इज 101% सेम. कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. जो डिफरेंसेस है, जो नए टाइम लिमिट्स है ऑर्डर इशू करने का, नोटिस इशू करने का, दैट वी शैल डिस्कस इन ए मीनवाइल. बट लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद 73-74. आई नो 73-74 सर सबने पढ़ा होगा, सबको पता होगा 73 में क्या है, 74 में क्या है. बट आज हम उसके थोड़े माइन्यूट पॉइंट्स देखेंगे, थोड़े लॉ के माइन्यूट प्रोविजंस देखेंगे कि सर उसमें लिखा क्या है एग्जैक्टली. तो लेट्स स्टार्ट. नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट सेक्शन 73. तो सर सेक्शन 73 हमारा कब यूज होता है? मैं जो ये पीपीटी है इसमें बेसिकली एक साइड हमारा सेक्शन 73 चलेगा और दूसरे कंपैरिजन में सेक्शन 74 अपन का चलेगा. तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. नाउ सर अगर मैं आप सबसे पूछूं 73 और 74 में सर सबसे मेजर डिफरेंस क्या है? अगर हम 73 और 74 को कंपेयर करें, सर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी स्क्रैच. एक घंटे में हम जितना डिस्कस कर सकेंगे हम करेंगे. बट आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि सर प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स ताकि थोड़ा इंटरेक्टिव हो सेशन. आई रिक्वेस्ट एवरीवन. सर 73 और 74 अगर हम देखें तो सर सबसे मेन बेस 73 और 74 में डिफरेंस क्या है? Pradeep ji is answering 74 is willful. Ujjwal ji is answering willful suppression of facts. So sir basically जब हम लोग 73 और 74 को कंपेयर करते हैं तब सर दोनों में तीन वर्ड्स का डिफरेंस है. सर पहला वर्ड है फ्रॉड, दूसरा वर्ड है willful misstatement और सर तीसरा वर्ड है suppression of facts. तो बेसिकली सर ये बोलता है कि अगर ये तीनों नहीं है तो 73 में नोटिस इशू होगा या ऑर्डर इशू होगा, और ये तीनों में से अगर एक भी चीज है दैट इज या तो फ्रॉड, या तो विलफुल मिस स्टेटमेंट, या तो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स. इन तीनों में से अगर एक भी चीज है तो सर हमारा जो नोटिस इशू होगा या जो ऑर्डर इशू होगा कहां इशू होगा? सर सेक्शन 74 में इशू होगा. करेक्ट, अग्री. अब सर सेक्शन 73 और 74 में जो रीजन है दैट इज 73 सबसेक्शन 1 और 74 सबसेक्शन 1 कि सर नोटिस कब इशू होगा, तो सर उसका रीजन कॉमन है. बेसिकली चार रीजन है. सब पहला रीजन है टैक्स नॉट पेड, अगर हमने टैक्स को पे नहीं किया. दूसरा है सर टैक्स को पे तो किया लेकिन कम पे किया. जैसे अभी बहुत सारे नोटिस आए हैं ऑफ कैलकाटा, दिल्ली, असम, जयपुर, राजस्थान, सब जगह आईआईटी हैदराबाद वाले सॉफ्टवेयर वाले नोटिस आए थे. तो सर उसमें क्या हुआ, काफी ऐसे टाइप के नोटिस आए थे कि ईवे बिल का टर्नओवर है 1 करोड़, 3B में हमने टर्नओवर दिखाया 70 लाख, तो सर 30 लाख में उन्होंने नोटिस इशू कर दिया. उन्होंने बोला कि ये 30 लाख आपका क्या है, आपने इस पे टैक्स पे नहीं किया है बेसिकली. तो ऐसा काफी सारा रीजंस था. तो अब सर बेसिकली व्हाट जब भी 73 या 74 में नोटिस इशू होता है, द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डिटरमाइन कि सर क्या ये चारों में से कोई भी एक रीजन फॉल हो रहा है. अगर ये चारों में से कोई भी एक रीजन फॉल नहीं हो रहा तो सर उसी टाइम हम उस नोटिस को खारिज कर सकते हैं क्योंकि सर ये रीजंस नहीं है. तो रीजन बेसिकली क्या है सर? टैक्स नॉट पेड, या तो टैक्स पेड ना हो
या तो टैक्स शॉर्ट पेड हो कि सर पेड तो है लेकिन कम पेड है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, या सर जैसे हमने रिफंड ले लिया लेकिन हमने रिफंड ज्यादा का ले लिया, इरोनियस रिफंड ले लिया, या तो सर ऐसा हो सकता है रिफंड मिलना ही नहीं था फिर भी हमने ले लिया। सर चौथा पॉइंट में मैंने एक वर्ड को रेड करा है या येलो करा है, हाईलाइट करा है, दैट इज और। तो इसमें लिखा है सर इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज। सर प्लीज कीप इन माइंड इसमें एंड नहीं है, इसमें और यूज हुआ है। इसका मतलब सर आई एम आस्किंग टू एवरीवन ए क्वेश्चन, सपोज सर मैंने गलती से ट्रांस वन में 1 करोड़ का क्रेडिट ज्यादा ले लिया था, मेरे को लेना था 2 करोड़ का क्रेडिट, मैंने गलती से ले लिया 3 करोड़ का क्रेडिट। अब सर बाद में जब स्क्रूटनी हुआ, ऑडिट हुआ, या मानिए कुछ जब उन्होंने देखा तो उनको पता चला कि सर मैंने 1 करोड़ का क्रेडिट ज्यादा ले लिया। अब सर माय क्वेश्चन इज कैन दे इशू ए नोटिस टू मी अंडर सेक्शन 73 प्रोवाइडेड आई हैव नॉट यूटिलाइज्ड द क्रेडिट। सर मैंने अभी तक क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं किया है, मैंने खाली अवेल किया, अभी भी वो मेरे क्रेडिट लेजर में 1 करोड़ रुपए इंटैक्ट पड़े हैं, मानिए 3 करोड़ पूरे के पूरे इंटैक्ट पड़े हैं, मैंने एक भी रुपए यूटिलाइज नहीं किया। तो मेरा क्वेश्चन है सर क्या हम नोटिस इशू कर सकते हैं 73 में? चेतन जी, उज्जवल जी, मनीष जी रिप्लाई करें यस यस यस। सर यस, द प्रदीप जी भी रिप्लाई करें यस यस सर, द आंसर इज करेक्ट, द आंसर इज यस। सर व्हाट इज द रीजन? सर द रीजन इज वेरी सिंपल कि अगर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया लेकिन यूटिलाइज नहीं किया, या तो फिर सर अवेल करके यूटिलाइज भी कर लिया, अगर दोनों में से सर एक भी कंडीशन होता है तो सर हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा, मतलब 73 में वो नोटिस इशू कर सकते हैं, 73 या 74 व्हाटएवर द केस में भी। यस जोगीराज जी करेक्ट, 74A हैज रिप्लेस्ड। सर लेकिन रिप्लेस कब से हुआ है? 1/4/2024 से। इसका मतलब सर जो भी मैं रिटर्न्स फाइल कर रहा हूं, जो भी मेरा एडजुडिकेशन हो रहा है द फाइनेंशियल ईयर 24-25 से, तब हमारा यूज होगा 74A। लेकिन सर अगर पुराने ईयर के कोई भी नोटिस आए, मानिए 21-22 का, 22-23 का, 23-24 का, तो 23-24 तक का सर जो भी नोटिस आएगा वो हमें सेक्शन 73 या 74 में ही आएगा, 74A में नहीं आएगा। 74A में सर नोटिस कब से आएगा? अगर पर्टेनिंग है टू फाइनेंशियल ईयर 24-25 और ऑनवर्ड्स, मतलब सर 1 अप्रैल 2024 से लेके जो भी मैटर होगा हमारे रिटर्न्स में, ई वे बिल में, जो भी रीजंस होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट में 2A में, तो सर वो सबसे रिगार्डिंग जो भी नोटिस आएगा वो 74 में आएगा, और बाकी सर पुराने ईयर्स के लिए जो भी होगा वो 73-74 इंटैक्ट है। अच्छा सर, तो मूविंग फॉरवर्ड, और सर दूसरा पॉइंट मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं सर, 74A इज 101% सेम सर, एक्सेप्ट द सम ऑफ द टाइम लिमिट्स। जैसे सर यहाँ पे अगर हमारा 3 साल था, फ्रॉड के केस में 5 साल था, तो उसमें 42 मंथ्स है और 12 मंथ्स है, वैसा वैसा वो हम लोग अभी देखेंगे, मैंने चार्ट प्रिपेयर किया सबके लिए। बट सर लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक्स। अगर सर 73 74 क्लियर हो गया तो सर 74A इज ऑटोमेटिकली क्लियर। ओके, तो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो हम 73(1) में या 74(1) में जब भी शो कॉज नोटिस इशू होता है, दैट इज शो कॉज नोटिस, दैट इज एससीएन इशू होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं रीजन अदर देन विलफुल। 73 में कब होगा सर? फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है तो बोलता है शो कॉज। सर शो कॉज नोटिस का मतलब ही क्या है? वेरी सिंपल कि सर बताइए, रीजन बताइए, कॉज बताइए, शो कॉज, आप रीजन बताइए, व्हाट व्हाई टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 एंड पेनल्टी इज नॉट पेएबल। बेसिकली सर जब भी सेक्शन 73 या 74 में नोटिस इशू होगा तो वो उसमें इंटरेस्ट, पेनल्टी और टैक्स नॉर्मली 3 कंपोनेंट लगा के भेजते हैं, और वो हमें बताते हैं कि सर आप बताइए कि व्हाट में बी द रीजन कि ये इंटरेस्ट, ये पेनल्टी या ये टैक्स हम आपसे रिकवर ना करें। दैट इज द बेसिक प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73(1) या फिर 74(1). ये दोनों में कॉमन है, बस डिफरेंस क्या है सर? वहां रीजन होता है फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट, और यहां होता है अदर देन दिस 3। अब सर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज क्या है अपन के लॉ में? सर जो जीएसटी का कानून है, जो जीएसटी का लॉ है, उसमें कहीं पे भी फ्रॉड को एक्सप्लेन नहीं किया, उसमें कहीं पे भी विलफुल मिसस्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन हाँ सर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब सर अगर हमें फ्रॉड का डेफिनेशन लेना है तो जो कोर्ट की जजमेंट्स है वहां से अज्यूम करना पड़ेगा, जो विलफुल मिसस्टेटमेंट या जजमेंट है, जो कॉमन इंग्लिश है कोर्ट की जजमेंट्स है, सर हमें वहां से इसका इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा। सर लेकिन एक नॉर्मल शिकायत सबकी रहती है, हमारी भी है डिपार्टमेंट से। सर वो क्या रहता है, जैसे डिपार्टमेंट हमने देखा है कि सर मानो 2A 3B का नोटिस है, या मानो 3B में शॉर्ट पे टैक्स है, वो सब का नोटिस है, तो सर वो सब का नोटिस भी कई बार क्या होता है, अगर 73 का टाइम एक्सपायर हो जाता है
तो एट टाइम्स द सेक्शन 74 इज यूज्ड, क्यों? ताकि सर टैक्स रिकवर हो सके। अब उसमें तो सर टाइम खत्म हो गया, लेकिन सर 74 में तो टाइम अपना ज्यादा था, जो कि ये शिकायत सर 74 आने का खत्म हो जाएगी, क्योंकि सर 73 और 74 में जो दो अलग अलग टाइम पीरियड चल रहे हैं। मे आई आस्क टू एवरीवन, सर क्या आप लोग चैट में टाइम पीरियड रिप्लाई कर सकते हैं? सर सेक्शन 73 में नोटिस इश्यू करने का टाइम पीरियड क्या है और ऑर्डर इश्यू करने का टाइम पीरियड क्या है? सेक्शन 73 में सर, सेक्शन 73 में नोटिस इश्यू करने का टाइम पीरियड क्या है और ऑर्डर इश्यू करने का टाइम पीरियड क्या है? प्लीज एवरीवन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, लेट्स हैव एन इंटरैक्टिव सेशन। सर बेस से जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा बेस से समझेंगे चीजों को तो मजा आएगा। ओके, करेक्ट सर, बेसिकली करेक्ट सर। 3 इयर्स सर, 3 इयर्स कौन से केस में है? सर 3 इयर्स है हमारे कौन से केस में? 3 इयर्स है उस केस में बेसिकली सर जिसमें फ्रॉड और ये सब नहीं है। और सर जो फ्रॉड वाला केस है, प्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सपरेशन ऑफ एक्ट्स, सर उसमें अपना जो टाइम लिमिट है 5 साल है। ये तो सर सबको पता है 3 साल है 5 साल है। लेकिन सर अब ये जो झगड़ा था हमारा डिपार्टमेंट से कि सर इस रीजन में फ्रॉड है, इस रीजन में फ्रॉड नहीं है, तो जो टाइम लिमिट था एक में कम था एक में ज्यादा था, अब सर गवर्नमेंट ने ये झगड़े को खत्म कर दिया। क्योंकि सर सेक्शन 74A में जो नया सेक्शन आया है जो कि लागू है 1/4/2024 से, उसमें सर जो टाइम लिमिट है वो कॉमन है। सर फ्रॉड हो या नॉन फ्रॉड हो, हाँ सर पेनल्टी अलग है, पेनल्टी कॉमन नहीं है। पेनल्टी जो उसमें था वो इसमें है, पेनल्टी कॉमन नहीं है, पेनल्टी अलग है। लेकिन सर उसमें क्या है, टाइम लिमिट का झगड़ा नहीं है, टाइम लिमिट कॉमन कर दिया कि नोटिस का टाइम लिमिट 42 मंथ्स है और ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट 1 साल है। अच्छा, इफ एनीवन हैज वर्कड इन द सर्विस टैक्स एरा या एक्साइज, तो सर आई हैव ए क्वेश्चन फॉर एवरीवन। सर जब पुराना कानून था जीएसटी से पहले, तो सर उसमें नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट तो था, लेकिन सर क्या उसमें ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट था? सर पुराना जो कानून था, मानिए सर्विस टैक्स था ये सब था, सर उसमें नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट तो था, लेकिन सर क्या उसमें ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट था? जैसे 73 और 74 में तो ऑर्डर इशू करने का भी टाइम लिमिट है, जैसे 3 साल और 5 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। सर पुराने कानून में क्या था? यस और नो? सर ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट था कि नहीं था? नो रिप्लाई। सर पुराने कानून में ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट नहीं था, खाली नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट था। सर आप देखिए कानून कैसे चेंज होता है। मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन ओल्ड लॉ जीएसटी 73 74 एंड 74A। सर मैं एक आपको डिफरेंस बताता हूँ जो आगे जाके हम लोग वापस देखेंगे, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर हमारा जो पुराना कानून था उसमें ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट नहीं था। अगर मानिए मैंने टाइम लिमिट के अंदर जो भी 5 साल 4 साल जो भी टाइम लिमिट था, अगर मैंने उसके अंदर नोटिस इशू कर दिया, तो सर अगर मेरा ऑर्डर 4 साल बाद भी पास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा इंटरेस्ट का मीटर चलता जाएगा, पेनल्टी का मीटर चलता जाएगा। इसका मतलब सर ये बहुत खतरनाक था कि अगर टाइम लिमिट में नोटिस इशू हो गया तो ऑर्डर तो सर वो लोग बाद में भी इशू कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट ही नहीं है। मतलब सर बेसिक से बेसिक क्या था कि डिपार्टमेंट को नोटिस इशू कर देना है। एक बार नोटिस इशू हो गया तो उनके दिमाग से वो खत्म हो गया लोड टाइम में इशू करने का। उसके बाद सर ऑर्डर वो 2 साल 4 साल कभी भी इशू कर सकते हैं। लेकिन सर 73 74 में क्या हुआ, 73 74 में टाइम लिमिट आ गया किस चीज का? ऑर्डर इशू करने का, कि बेसिकली 3 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न एंड 5 इयर्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। और सर अगर एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट बढ़ जाती है, जो कि अभी 2-3 साल से नहीं बढ़ रही है, तो सर हमारा जो ड्यू डेट वो जो होगा वो कॉमन रहेगा। लेकिन सर अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सर 74A में क्या है? सर 74A में इन्होंने बोला है, 74A में, अच्छा सर लेट मी आस्क ए क्वेश्चन। 74A में सर जो क्वेश्चन लिमिट है वो सर लिमिट है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। इसका मतलब सर नोटिस इशू करने के पास, नोटिस इशू करने का मेरे पास टाइम लिमिट है 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। मानिए अगर मेरा एनुअल रिटर्न फाइल हुआ, जो ड्यू डेट, तो ड्यू डेट आया अगर 31 दिसंबर, तो सर 31 दिसंबर 2025, तो सर 31 दिसंबर 2025 से आप देखिए 42 मंथ्स, 42 मंथ सर कितने हो गए? 3.5 साल। तो सर बेसिकली आएगा 30 जून 2029, करेक्ट? 3.5 साल आएगा। 2026, 2027, 2028
और 2029 का आधा, मतलब 29 जून 2029, 30 जून 2029। अब सर लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, अब इसमें बोलता सर आपको नोटिस कब तक इशू करना है, 42 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, एंड सर ऑर्डर कब तक इशू करना है, 12 months from the due date of annual return, from the due date of notice। सर देखिए लैंग्वेज में कैसा चेंज है, जो सेक्शन 73 74 था उसमें टाइम लिमिट क्या ऑर्डर इशू करने का, देखिए चार्ट में है 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, और इसमें कितना है 5 years। इसका मतलब सर मैं नोटिस कभी भी इशू करूं डजंट मैटर, ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट फिक्स है। इसका मतलब सर अगर मैंने आपका 3B फाइल हुआ, 1 फाइल हुआ, मतलब पीरियड खत्म होते अगर मैंने अगले साल जनवरी में नोटिस इशू कर दिया, माने 3 months प्रायर टू द, ये मेरा नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट है, तो सर मानिए मेरा अगर साल खत्म हुआ 2021 मार्च 2021 को, और मैंने नोटिस इशू कर दिया आपको अप्रैल 2021, तो भी सर मेरा जो टाइम लिमिट होगा ऑर्डर इशू करने का वो फिक्स रहेगा। इसका मतलब सर मैं नोटिस कभी भी इशू करूं 74 और 73 में, लेकिन मेरा जो ऑर्डर इशू का टाइम लिमिट है वो फिक्स रहेगा। अगर वो 3 साल बाद है तो 3 साल बाद ही रहेगा, मैं 3 साल में कभी भी ऑर्डर इशू कर सकता हूं। और सर सर्विस टैक्स में हमने क्या बोला, पुराने कानून में कोई भी टाइम लिमिट था ही नहीं ऑर्डर इशू करने का। लेकिन सर आप देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 74A में इसको इन्होंने चेंज कर दिया है। 74A में ये क्या कहते हैं, 74A में कहते हैं कि सर द टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ ऑर्डर इज 12 months फ्रॉम द इश्यू ऑफ नोटिस। सर वापस वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इसका मतलब सर 12 months, व्हाट इज द ऑर्डर फॉर इश्यू ऑफ ऑर्डर, सर नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट तो 42 मंथ्स है, दैट इज क्लियर। 42 मंथ्स को अगर मैं ड्रिल डाउन कर दूं तो सर सिंपल सा कितना निकल के आएगा, 3.5 साल। इसका मतलब सर 3.5 साल में मेरे को नोटिस इशू करना पड़ेगा, करेक्ट है सर। मतलब सर अभी 2.5 साल और 2 साल 9 महीने जो मेरा 73 में था, या फिर 74 में जो था मेरा 4.5 साल, वो झंझट खत्म। इसमें एक ही कॉमन टाइम लिमिट है, दैट इज 42 मंथ्स, मतलब 3.5 साल नोटिस इशू करने की। अब सर अगर मैंने नोटिस इशू कर दिया साल खत्म होने के जस्ट 1 महीने बाद, तो मतलब मेरा ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न था 31 दिसंबर, मैंने नोटिस इशू कर दिया मैंने जनवरी में, तो सर अब इस केस में क्या होगा, मेरा ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट सेम नहीं है। सर सेक्शन 74 बोलता है, 74A बोलता है सर व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग, व्हाट इज द डेट फॉर इशू ऑफ ऑर्डर, दैट इज 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। इसका मतलब सर वहां पे अगर किसी को डिपार्टमेंट ने नोटिस जल्दी दे दिया तो फिर उसको सर उसका ऑर्डर भी 12 महीने के अंदर ही क्लोज करना पड़ेगा। लेकिन सर 2024 से पहले, दैट इज अप टू 31 मार्च 2024, 23-24 तक ऐसा नहीं था सर, क्योंकि 73 और 74 में लैंग्वेज क्या है, 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ ऑर्डर। इसका मतलब सर मैं नोटिस जल्दी इशू करूं बाद में इशू करूं, एज ए डिपार्टमेंटल पर्सन आई हैव नो ऑब्लिगेशन, मैं ऑर्डर 2 साल बाद भी इशू कर सकता हूँ, 3 साल बाद भी इशू कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड वो मेरे टाइम पीरियड के अंदर हो। लेकिन सर अब 74A में क्या है, अगर नोटिस इशू हो गया है तो सर मेरे को नोटिस इशू करने के 12 महीने के अंदर ऑर्डर भी इशू करना पड़ेगा। पीपीटी सर चेंज कर रहे हैं। अच्छा सर अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोग से, एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सर आप लोगों ने देखा होगा जब भी नोटिस आता है, एससीएन आता है बेसिकली, उसके साथ एक डीआरसी 01 भी आता है। सर क्या आप लोग ने देखा है जब भी नोटिस आता है उसके साथ एक डीआरसी 01 भी आता है, और कोई कोई इसमें प्री प्री नोटिस है तो 01A आएगा, ठीक है ना। पीपीटी स्टिल, सर पीपीटी मूव अब हो रही है, पीपीटी मूव हो रही है, यस ओके सर, कैन यू चेंज दिस पीपीटी इनटू पीपीटी मोड, तो क्या है कि थोड़ा और प्रोमिनेंटली विजिबल होगा। श्योर सर श्योर, आई होप सर अब फाइन है। हाँ यस, नाउ दिस इज बेटर सर। ओके ओके सर, ओके सर नाउ माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज कि सर अगर मैं क्वेश्चन टू एवरीवन इज सर जब भी मेरा एससीएन इशू होता है, दैट इज सेक्शन 73 में 74 में, तो सर जो रूल 142 है वो बोलता है कि सर मेरा डीआरसी 01A भी इशू होना चाहिए या डीआरसी 01 इशू होना चाहिए, दैट इज अलॉन्ग विथ इट इज नेसेसरी। नाउ माय क्वेश्चन इज सर अगर एससीएन इशू हुआ 14 तारीख को, 14 फरवरी को, लेकिन सर मेरा जो डीआरसी 01 था वो इशू हुआ 20 तारीख को। सर आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग केस। सर मेरा जो नोटिस इशू हुआ एससीएन, मेरा एससीएन इशू हुआ 14 फरवरी को, और मानिए जो डीआरसी 01 इशू हुआ
वो हुआ 14 मार्च को। अब मैं सर जब देखूंगा टाइम लिमिट फॉर रिप्लाई दैट इज 30 डे ऑफ SCN, हम लोग देखते हैं ना कि सर पेनल्टी कितना लगेगा, 73 है 74 है, 30 डेज ऑफ नोटिस ये सब। तो सर उस केस में मैं नोटिस का डेट क्या लूंगा, DRC-01 का डेट लूंगा या सर मैं फिर SCN का डेट लूंगा? 14 फरवरी लेंगे या 14 मार्च लेंगे, क्या लेंगे? सर मेरा SCN इशू हुआ 14 फरवरी को और 14 मार्च को मेरा इशू हुआ DRC-01। राजन जी इज रिप्लाइंग 14 फरवरी लेंगे, रेस्ट बाकी लोग क्या बोलते हैं, क्या लेंगे, कौन सा डेट लेंगे? कंफ्यूज्ड? DRC-01 डेट लेंगे। प्रदीप जी तो अलग ओपिनियन दे रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो रहा है हमारा। राजन जी बोल रहे हैं 14 फरवरी, प्रदीप जी बोल रहे हैं 14 मार्च। अब सर देखिए, जब भी हम रूल देखेंगे, रूल 142, सर तो रूल 142 का लैंग्वेज क्या है? लेट मी गेट टू यू द स्लाइड, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए सर, ये वाला स्लाइड आप लोगों को दिख रहा होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या है सर, कैन SCN एंड DRC-01 डेटेड सेपरेटली इज लीगली वैलिड? सर मेरा पहला क्वेश्चन है, मैंने आपको पूछा कि सर कौन सा डेट लेंगे, लेकिन सर उससे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, आपका ये क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर क्या ये वैलिड भी है? अगर SCN अलग डेट को इशू है, DRC-01 अलग डेट को इशू है, सर तो पहला पॉइंट क्या ये वैलिड भी है कि नहीं है? सर तो द पॉइंट इज कि सर जब भी ऐसा केस होता है तो सर हमें क्या करना चाहिए, हमें डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखनी चाहिए सर, क्योंकि कई बार मैंने देखा है क्या होता है, SCN डिपार्टमेंट ने इशू किया 14 फरवरी को, लेकिन उन्होंने क्या हुआ, पोर्टल में अपलोड नहीं किया, उन्होंने डिन जनरेट करके रख दिया। अब सर नोटिस तो इशू हो गया 14 फरवरी को, लेकिन क्या हुआ, अब मानिए जब पोर्टल पे उन्होंने पोर्टल पे अपलोड किया नोटिस, तो पोर्टल पे तो DRC-01 जब पोर्टल पे अपलोड करेंगे नोटिस तब जनरेट होगा। अब सर वो नोटिस जनरेट हुआ 14 फरवरी 14 मार्च को, तो अब सर दो अलग अलग डेट्स आ गई हमारे पास। अब सर इसमें क्या है, मेरा ओपिनियन क्या है, अब सर पहले आप रूल 142 देखिए, रूल 142 क्या बोलता है? सर रूल 142 बहुत क्लियरली बोल रहा है, द प्रॉपर ऑफिसर शैल, पहला बात शैल है तो मैंडेटरी है, सर्व अलोंग विथ नोटिस अंडर सेक्शन 52 जो भी रिक्वायरमेंट्स है, इस समरी इलेक्ट्रॉनिकली इनफॉर्म DRC-01। इसका मतलब सर ये मैंडेटरी है, DRC-01 SCN के साथ इशू करना मैंडेटरी है। तो सर जब भी ऐसा कोई केस होता है तो व्हाट वी शुड डू एज पर माय हम्बल ओपिनियन, हमें डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखनी चाहिए और हमें उनको बताना चाहिए कि सर नोटिस इशू हुआ 14 फरवरी को, DRC इशू हुआ 14 मार्च को, तो सर हमें कौन सा डेट लेना है इशू ऑफ नोटिस का? अब सर दो चीजें हो सकती है, या तो डिपार्टमेंट का रिप्लाई आएगा या तो डिपार्टमेंट का रिप्लाई नहीं आएगा। अगर सर डिपार्टमेंट का रिप्लाई नहीं आया तो ये अगर केस फॉरवर्ड गया हायर फॉरम्स में गया, तो सर दिस विल बी ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट सर, एज ए ग्राउंड हम यूज कर सकते हैं सर। वी हैव आल्सो ए केस लॉ इन दिस, उदित तिब्रीवाल वर्सेस द स्टेट ऑफ असम, गुवाहाटी हाई कोर्ट का केस लॉ है सर, और ये रिसेंटली पास हुआ है। इसमें सर क्या हुआ था, अभी जब IIT हैदराबाद के नोटिस इशू हुए तो सर क्या हुआ था, DRC-01 तो इशू हुआ, उसके साथ एक अटैचमेंट भी आया, लेकिन सर किसी को भी SCN नहीं मिला। ये सर बहुत कॉमन इशू था, दो तीन कॉमन इशू थे कि सर एक तो कॉमन इशू था कि आपका जो DRC है उसमें साइन नहीं है ऑफिसर का। सर दूसरा एक कॉमन इशू था कि सबने बोला कि सर हमें DRC-01 का कॉपी तो मिला, उसके साथ अटैचमेंट भी मिला, लेकिन सर SCN ही मिसिंग है। अब सर SCN जब मिसिंग है तो सर 73 का नोटिस वैलिड कैसे हो सकता है? तो सर उदित तिब्रीवाल वर्सेस स्टेट ऑफ असम गुवाहाटी हाई कोर्ट का केस में ये डिसाइड हुआ कि सर ये जो नोटिस है, द नोटिस इज लीगली नॉट वैलिड, बिकॉज सर खाली DRC-01 इज नॉट ए वैलिड नोटिस। जब तक DRC के साथ आपका SCN ना हो या फिर SCN के साथ DRC ना हो, तब तक हम उसको वैलिड नोटिस नहीं मानेंगे। अब सर मैं जो आपको पॉइंट बता रहा था कि हमने डिपार्टमेंट को लेटर लिखा, डिपार्टमेंट से पूछा कि नोटिस का डेट क्या माने। सर दो केस था, या तो डिपार्टमेंट बोलेगा ये कुछ रिप्लाई नहीं करेगा, तब तो हम इसको हायर फॉरम्स में चैलेंज कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, और सर अगर डिपार्टमेंट ने हमें बोल दिया, डिपार्टमेंट ने बता दिया कि आप ये डेट मानिए, तब सर हम ये केस लॉ यूज करके भी पॉइंट चैलेंज कर सकते हैं कि सर अगर वो कह रहे हैं DRC-01 का डेट लो, तो सर DRC-01 का डेट, अगर DRC-01 इशू हुआ, नोटिस पहले इशू हुआ, तो हाउ इट इज लीगली वैलिड? और सर अगर नोटिस 14 फरवरी को इशू हुआ लेकिन DRC इशू नहीं हुआ, तो सर इट इज ऑल्सो लीगली नॉट वैलिड, क्योंकि सर DRC इशू करना ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन।
आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो सर हम लोग आगे बढ़े, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट केस लो था। अच्छा सर, तो आगे बढ़ते हैं। अब सर बाकी 72 73 74 का कंपैरिजन चल रहा है सर, तो ठीक है, पहला हमने बोला कि कब कब इशू होगा, दूसरा हमने डिस्कस किया टाइम लिमिट्स। अब सर तीसरा पॉइंट एक स्टेटमेंट वाला वर्ड आता है सर। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है। 73 सबसेक्शन 3, 74 सबसेक्शन 3 रेड विथ 73 सबसेक्शन 4, 74 सबसेक्शन 4। अब सर हम लोग जब इसका कंबाइंड रीडिंग करें ना, बेसिकली दोनों पॉइंट सेम है, आप बस वहां पे पकड़िए वो तीन चीज है और यहाँ पे तीन चीज नहीं है सर। कौन सा फ्रॉड या तो मिसरिप्रेजेंटेशन, सॉरी फ्रॉड या तो सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स या फिर विलफुल मिसस्टेटमेंट। अब सर यहाँ पे देखिए सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 को अगर हम जोड़ के पढ़े तो ये क्या बोलता है, तो ये बोलता है सर अगर आपने नोटिस इशू कर दिया 17-18 का और 18-19 का आपने नोटिस इशू नहीं किया, लेकिन आपने खाली एक स्टेटमेंट इशू किया, सर प्लीज बी विथ मी। सर क्या सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि सर हमने क्या किया, डिपार्टमेंट ने सर 17-18 का नोटिस इशू किया, एससीएन इशू किया, एससीएन के साथ सर सॉरी एससीएन के साथ डीआरसी भी इशू किया, ओके फाइन। लेकिन सर क्या हुआ, 18-19 का उन्होंने खाली एक स्टेटमेंट इशू कर दिया और स्टेटमेंट के साथ डीआरसी इशू कर दिया, तो सर क्या ये स्टेटमेंट वैलिड एससीएन माना जाएगा? माय क्वेश्चन इज टू एवरीवन। सर 17-18 का वैलिड नोटिस इशू हुआ, डीआरसी 01 भी इशू हुआ, लेकिन 18-19 में क्या हुआ, एससीएन इशू नहीं हुआ, खाली डीआरसी 01 इशू हुआ और साथ में एक स्टेटमेंट इशू हुआ, जो कि आईआईटी हैदराबाद का जो अभी नोटिस आ रहे थे सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें हो रहा था। तो अब मेरा पॉइंट है कि 18-19 का जो नोटिस है, जो बेसिकली डीआरसी अलॉन्ग विद स्टेटमेंट है, क्या हम उसको वैलिड नोटिस मानेंगे, यस और नो? प्रदीप जी, राजन जी, काफी लोग हैं, 30 लोग हैं। जोगीराज जी, मनीष जी, प्रदीप जी कह रहे हैं यस मानेंगे, ओके। तो सर देखिए इसमें बहुत सिंपल सा पॉइंट है। अब लेकिन लेट मी ट्विस्ट द क्वेश्चन। अब सर मैं क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब सर 17-18 का मेरा नोटिस आया, ठीक है मानेंगे। अब सर ये क्या है, क्वेश्चन अधूरा है, अब क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, फैक्ट्स जोड़ देते हैं इसमें। अब सर समझिए 17-18 में क्या हुआ, मेरा नोटिस आया, नोटिस में सर किस रीजन से नोटिस आया, मानिए मेरा नोटिस आया 2A और 3B, जो कि चलिए 2A वैलिड भी नहीं था उस टाइम पे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं एक बार, सर नोटिस आया हमने मान भी लिया, ठीक है। तो सर 17-18 में हमारा नोटिस आया, नोटिस का रीजन क्या था, सर 2A 3B था। अब 18-19 में सर मेरा जो डीआरसी 01 आया अलॉन्ग विद स्टेटमेंट आया, एससीएन नहीं आया, लेकिन सर उसमें दो ग्राउंड थे, या मानिए उसमें ग्राउंड ही अलग था। उसमें ग्राउंड था सर जीएसटीआर 7 में आपका जो टीडीएस कटा है वो मानिए 10 करोड़ पे कटा है, और सर 3B में हमने जो टैक्स डिस्चार्ज किया है वो मानिए खाली 8 करोड़ पे डिस्चार्ज किया है। तो अब उनके हिसाब से सर 2 करोड़ पे आपने टैक्स शॉर्ट डिस्चार्ज किए। अब 2A 3B का यह मैटर ही नहीं है इस नोटिस में, मतलब सर 17-18 में मेरा जो नोटिस आया हुआ है 2A 3B के लिए, अब 18-19 में सर मेरा जो खाली डीआरसी है अलॉन्ग विद स्टेटमेंट, तो उसमें सर क्या था रीजन, व्हाट वाज द ग्राउंड ऑफ द नोटिस, ग्राउंड ऑफ द नोटिस वाज जीएसटीआर 1 वर्सेस मानिए जीएसटीआर 7। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, अब सर क्या ये वैलिड है डीआरसी कि इनवैलिड है? सर एक ओपिनियन तो फॉर्म कीजिए, यस नो तो बोलिए, वैलिड है कि इनवैलिड है? Rajan ji is saying in case of new grounds, fresh SCN required to be issued, notice invalid. Chetan ji is saying invalid. Great. सर एकदम करेक्ट पॉइंट है। तो सर 73 सबसेक्शन 3 और 73 सबसेक्शन 4 जब हम दोनों को जोड़ के पढ़ेंगे ना, तो सर सिंपल सा पॉइंट इसमें आता है कि सर देखिए मैंने जो रेड में हाईलाइट किया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट वैलिड, यस सर करेक्ट। grounds relied upon for such tax period other than those covered under subsection 1 are same as mentioned above notice। का मतलब सर जब भी हमें फ्यूचर का नोटिस आए और हमें ये देखना पड़े कि सर खाली डीआरसी 01 इशू हुआ है, एससीएन इशू ही नहीं हुआ, लेकिन साथ में स्टेटमेंट है, तो सर हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि पिछला अगर हमारा स्टेटमेंट इशू, पिछला अगर हमारा एससीएन है, तो सर उसमें जो ग्राउंड था और उसमें जो ग्राउंड था वो सेम है किया गया। 74 में भी सर सेम चीज है। अब सर पेनल्टी का देखिए, पेनल्टी का चार्ट क्या बोलता है, आई होप सर ये सबको पता है, बट स्टिल वी आर डिस्कसिंग वंस अगेन। और सर मैं बता दूं कि सर ये जो पेनल्टी का चार्ट है 74A में हू बहू है, 74A में पेनल्टी सर कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं हुई है,
74A में भी 2 क्लासिफिकेशन है, वन बेसिकली बिकॉज ऑफ फ्रॉड, willful misstatement and suppression of facts and other is other than। तो सर वहां पे भी सेम पेनल्टी है कि सर अगर नोटिस सर्व होने के पहले नोटिस इशू हुआ, बेसिकली पेमेंट, बेसिकली अगर नोटिस सर्व होने के पहले हमने पेमेंट कर दिया तो नो पेनल्टी, अगर नोटिस इशू होने के 30 दिन में हमने पेमेंट कर दिया तो सर पेनल्टी नहीं लगेगा 73 में, बेसिकली अगर वो 3 पॉइंट्स नहीं है। लेकिन सर अगर कोई भी अदर ग्राउंड हुआ, मतलब नोटिस इशू करने के 30 दिन के अंदर हमने पेमेंट नहीं किया, तो सर फिर आपका पेनल्टी कॉमन है, दैट इज 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 whichever is higher। अब सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन है आप सबसे, इसमें बोल रहे हैं बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस अगर शो कॉज इशू हुआ तो ऐसा है। अब सर आप एक सेक्शन देखिए, एक वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन है, हम लोग वापस आएंगे पेनल्टी वाले चार्ट में। सर सेक्शन 73 सबसेक्शन 5 बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। सर क्यों इंटरेस्टिंग है ना, देखिए सर जब भी हम लोग डिपार्टमेंट के साथ कोई भी चैलेंज करते हैं, मतलब कोई भी नोटिस को लेके डिस्कस करते हैं कि सर विलफुल मिसस्टेटमेंट क्या है, और मानिए आपका क्या बोलते हैं इसको फ्रॉड क्या है, और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स क्या है, तो सर हमेशा एक मैंने देखा है, मानिए एक केस लेते हैं, केस अज्यूम करते हैं कि सर मेरे पास एक मेरे क्लाइंट का क्या ऑडिट का नोटिस है। सर ऑडिट का नोटिस कौन से सेक्शन में आएगा, फटाफट रिप्लाई कर दीजिए। सर ऑडिट का नोटिस कौन से सेक्शन में आएगा, यस सर सेक्शन 65 में आएगा। अब ऑडिट का नोटिस सर किस में आया, सेक्शन 65 में आया। अब सर ऑडिट का नोटिस आने के बाद क्या हुआ, मानिए मेरा टैक्स शॉर्ट पेड था, या मानिए मेरा 3B में क्रेडिट 2B से एक्सेस लिया हुआ था, 2B से सर मेरा 3B का क्रेडिट एक्सेस था 1 फरवरी 2022 के बाद, क्योंकि 1 जनवरी 2022 के बाद। तो अब मानिए क्या हुआ, ऑडिट में जब ये चीज पता चला ना, तो अब वो बोलते सर आपको टैक्स देना पड़ेगा 74 के हिसाब से। तो मैंने बोला सर ये सप्रेशन कैसे है, ये विलफुल मिसस्टेटमेंट कैसे है। सर मैंने तो गलती से क्रेडिट ले लिया, मेरे पास इनवॉइसेस थे, मैंने क्रेडिट ले लिया, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया 2B में नहीं आ रहा था। ऑल्दो 2B वाला कंडीशन कानून में है, 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डबल ए, 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज डबल ए क्या बोलता है सर, जो कानून आया 1 जनवरी 2022 से, कि सर अगर कोई भी आपका आईटीसी है तो वो आपका इनवॉइसेस होने के साथ आपका 2B में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अग्री सर। अब लेकिन क्या हुआ, मैंने गलती से ले लिया, मेरे पास इनवॉइसेस थे लेकिन 2B में नहीं आया, तो मैंने ले लिया। मैंने बोला ठीक है ले लेते हैं, बाद में वो रिटर्न लगा देगा। अब सर लेकिन क्या हुआ, ऑडिट के दौरान मानिए 2 साल बाद ऑडिट खुला, उस साल का 2022-23 का, और ऑडिट के दौरान इन्होंने देखा कि सर ये आपका 2B में नहीं आ रहा, आपने एक्सेस लिया है, तो उन्होंने बोला सर ये 50,000 आप रिवर्स करो। मैंने बोला अग्रीड, मैं ये 50,000 रिवर्स करूंगा, मैं ब्याज के साथ रिवर्स करूंगा। अब लेकिन मेरा क्वेश्चन है सर मैं इस पे पेनल्टी दूंगा कि नहीं दूंगा, और दूंगा तो कितना दूंगा। बेसिकली क्या मैं इसको 73 में ले जाऊंगा या 74 में ले जाऊंगा, या नॉर्मली अगर आप लोगों ने जिसने जिसने डील किया है, सर नॉर्मली आपके साथ ऑफिसर का क्या ओपिनियन है, या क्या होता है सर, 74 में 15% पेनल्टी देते हैं या 73 में हटा ही देते हैं, नो पेनल्टी, सर नॉर्मली क्या होता है, प्लीज रिप्लाई। आई थिंक नो पेनल्टी। 73 चेतन जी सिंह, 73 प्रदीप जी सिंह, 73 ओके सर। अब सर इसमें एक पॉइंट क्या है सर, अब मेरा जितना इंस्टेंसेस पड़ा, मानिए 10 15 20 जितना भी, उसमें से सर आधे में ऑफिसर्स का था ओपिनियन था कि ठीक है सर 73 में कर देंगे, सप्रेशन तो नहीं है, विलफुल मिसस्टेटमेंट नहीं है, आपके पास इनवॉइसेस आपने गलती से ले लिया, 2B में नहीं आया था, अभी भी नहीं आया, तो आप रिवर्स करने के लिए रेडी है, ठीक है। लेकिन सर किसी किसी में इंस्टेंसेस था कि सर अगर ऑडिट नहीं होता तो ये तो आप कभी रिवर्स ही नहीं करते, क्योंकि ये तो पता ही नहीं चलता, आपने तो आईटीसी ले लिया। अब सर अगर ऑडिट नहीं होता, या मानिए अगर हम स्क्रूटनी नहीं करते, तब सर ये चीज तो कभी पता ही नहीं चलता, पता नहीं चलता तो सर आप रिवर्स नहीं करते, तो अब उनके हिसाब से 74 में जाना चाहिए। अब सर देखिए 73 सब सेक्शन 5 का सर जो लैंग्वेज है, सर बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, उन्होंने इसमें क्या लिखा है सर, देखिए द पर्सन चार्जेबल विद टैक्स में बिफोर सर्विस ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 और एज द केस में बी द स्टेटमेंट अंडर सबसेक्शन 3, बिकॉज सर सबसेक्शन 1 में क्या हो रहा है, आपका नोटिस इशू हो रहा है, और सबसेक्शन 3 में क्या हो रहा है, स्टेटमेंट इशू हो रहा है। पे द अमाउंट ऑफ टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मतलब बेसिकली सर ये प्री एससीएन का बात कर रहे हैं, अगर शोकॉज नोटिस इशू होने से पहले या स्टेटमेंट इशू होने से पहले मैंने टैक्स पे कर दिया, तो सर मेरे को क्या होगा, 73 अगर केस है पेनल्टी नहीं लगेगा। और अगर सर मैं सेम सेक्शन लूं
दैट इज 74 सबसेक्शन 5, तो वो क्या बोलते हैं सर पेनल्टी लगेगा 15% लगेगा, 15%। अग्री सर, मैं एग्री कर रहा हूँ। लेकिन अब मेरा पॉइंट है सर, मैं उनको एक लैंग्वेज दिखाना चाहता हूँ। देखिए सर, इन्होंने गवर्नमेंट ने या जब ये कानून ड्राफ्ट उन्होंने लिखा है ऑन द बेसिस, सर ये लाइन देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन असर्टेनमेंट। ओन असर्टेन मतलब सर किसकी बात हो रही है? टैक्स पेयर की बात हो रही है। मतलब टैक्स पेयर खुद, मतलब सर टैक्स पेयर को खुद को पता चला कि मेरा ऐसा ऐसा इशू था जो मैंने शॉर्ट पेड किया है, या मानिए मैंने आईटीसी ज्यादा लिया, जो भी केसेस है, टैक्स नॉट पेड, टैक्स शॉर्ट पेड, तो सर उस केसेस में मैं क्या करूंगा, मैं खुद जाके डीआरसी 03 पे कर दूंगा, और सर उसके बाद मैं ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दूंगा, क्योंकि लास्ट में लिखा भी है इन्फॉर्म द प्रॉपर ऑफिसर इन राइटिंग। तो मैं एक चिट्ठी लिख दूंगा कि मेरे को बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा था, तो मैंने खुद विलफुली पे कर दिया है डीआरसी 03 से टैक्स, और सर ये मैंने आपको इंटीमेट कर दिया। ओके, अब सर देखिए इसमें एक लाइन और है, on the basis of his own ascertainment of such tax or the tax ascertained by the proper officer। अब सर जब मैं बोल रहा हूं टैक्स ascertained by the proper officer, इसका मतलब क्या है? सर टैक्स ऑफिसर ने भी तो मेरे को निकाल के दिया ना यार। सर आप सिंपल सा बात समझिए, 73 में तो लिखा हुआ है ना ये लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन असर्टेनमेंट, मतलब मेरा खुद का, या तो मेरे को खुद को अपने आप पता चल गया, माने मेरा सीए बता दिया, या कोई भी क्लाइंट का सीए बता दिया, कोई भी बता दिया। सर दूसरा केस क्या है, और ऑन द टैक्स असर्टेन्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। मतलब सर अगर ऑडिट हुआ और ऑफिसर को कुछ मिला कि ये टैक्स हमने नहीं दिए, और अगर वो 3 रीजन नॉर्मली नहीं है, तो सर हम उनको बोल सकते हैं 73(5) में लिखा हुआ है कि सर अगर आप भी असर्टेन करके हमें बताएं और हम नोटिस इशू करने के पहले वो टैक्स दे दे डीआरसी 03 के तहत, तो सर अमाउंट पेनल्टी पेएबल नहीं होगा, या फिर सर एससीएन इशू नहीं होगा। तो सर ये एक वैलिड पॉइंट है जो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि सर मैंने बहुत बार देखा है कि सर डिपार्टमेंट का ये ओपिनियन रहता है कि नहीं नहीं सर हमने ढूंढ के दिया ना, अगर हमने ढूंढ के दिया तो सर बिल्कुल स्टेटमेंट है, फ्रॉड है, क्योंकि हम ढूंढते नहीं तब तो कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन सर ऐसा नहीं है, 73(5) में अगर ये लैंग्वेज है कि टैक्स असर्टेन बाय द प्रॉपर ऑफिसर, तो इसका मतलब है सर उन्होंने सोच समझ के ये लाइन लिखा है। इसका मतलब सर ऑफिसर भी अगर असर्टेन करके, मे बी इन स्क्रूटनी केसेस, मे बी इन ऑडिट केसेस, अगर वो हमें बता दे ये शॉर्ट पेड है और वो नॉर्मली गलती से हमें मिस आउट हो गया हो, उसमें हमारा फ्रॉड का इंटेंट ना हो, जैसे मैंने 2BL एग्जांपल दिया, तो सर हमें 15% पेनल्टी देने का दरकार नहीं है। बिफोर एससीएन हम उसको आराम से 73 में कंटेस्ट कर सकते हैं। ओके सर, नाउ सर ये टाइम लिमिट जो मैंने आपको बोला 73 74 में जो पेनल्टी है, दैट इज सर 73 में क्या है, अगर इशू इनवॉइस इशू टैक्स नोटिस इशू होने के पहले अगर मैंने पेनल्टी पे कर दिया, तो सर नो पेनल्टी, अगर मैंने टैक्स पे कर दिया अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, और सर अगर मैंने नोटिस आने के 30 दिन के बाद तक भी पे कर दिया, तो नो पेनल्टी एंड नो इंटरेस्ट। बट सर अगर नोटिस इशू होने के 30 दिन के अंदर मैंने पे नहीं किया और कोई भी दूसरा केस हुआ, तो सर फिर 10% टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। और सर सेम केस 74 में क्या आता है, 15%, 25%, 50%, 100%। अब सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मेरा क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आंसर कीजिएगा सब लोग। सर नोटिस इशू हुआ 1 जनवरी 2024, सर नोटिस कब इशू हुआ, 1 जनवरी 2024, ठीक है सर। अब सर नोटिस इशू हुआ 1 जनवरी 2024, लेकिन मानिए ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया 30 जून 2024। सर वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, नोटिस इशू हुआ 1 जनवरी 2024। अब सर अगर हम टेक्निकली लॉ की लैंग्वेज देखें 74 का, तो क्या लिखा हुआ है, विद इन 30 डेज आफ्टर द इशुएंस ऑफ एससीएन कितना टका पेनल्टी लगना चाहिए, 25%। लेकिन सर अभी क्या हुआ, अभी समझे नोटिस इशू हुआ 1 जनवरी 2024, और मैंने जो अमाउंट था मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि सर हाँ मेरा पेबल है, और मैंने ये अमाउंट 10 मार्च को पे कर दिया। लेकिन सर 10 मार्च तक ऑर्डर इशू नहीं हुआ। सर आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, नोटिस इशू हुआ 1 जनवरी 2024, मैंने देखा नोटिस, मैंने देख के अमाउंट पे भी कर दिया। मैंने पे कब किया सर, 1 मार्च 2024, नियम से 2 महीने बाद पे किया। अब सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये, लेकिन ऑर्डर इशू नहीं हुआ था सर, अभी तक ऑर्डर इशू नहीं हुआ था। अब सर इसमें कितना टका पेनल्टी लगेगी, या सर इसमें आप कितना टका ब्याज लगेगा, विद पेनल्टी लगेगा सर, चैट बॉक्स में बताइए। सुभाषिष जी सिंह 25%। सर लेकिन 30 दिन तो पार हो गया, लॉ में तो लिखा विद इन 30 डेज आफ्टर द इशू ऑफ एससीएन। सर 30 दिन तो पार हो गया, आपने तो 20 दिन 2 महीने बाद टैक्स दिया। प्रदीप जी सिंह 50%। लीजिए सर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन आ गया।
राजन जी इज सेइंग 25%, बट ऑर्डर हैज नॉट बीन इशूड। 73 में 10% और 10,000। सर सुदीप्ता जी मैं 74 की बात कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ सुदीप्ता जी मैं 74 की बात कर रहा हूँ। सुभाषिश जी से राइट कि ऑर्डर तो इशू नहीं हुआ। हाँ सर मैं अग्री कर रहा हूँ कि 1 मार्च को जब मैंने टैक्स अलाउ विद इंटरेस्ट पूरा का पूरा जमा करा दिया, मानिए 10 लाख का डिमांड था टैक्स और इंटरेस्ट का, 10 लाख मैंने टैक्स और इंटरेस्ट में जमा करा दिया, लेकिन सर ऑर्डर अभी तक इशू नहीं हुआ। अब सर कितना पेनल्टी लगेगा? पेनल्टी तो ऑफिसर बोले मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा। चलिए सर 74 का केस है तो लगेगा। अब लेकिन मेरा क्वेश्चन है कितना लगेगा सर? 25 लगेगा ना 50 लगेगा? सर अगर 25 लगेगा तब तो 30 दिन से ज्यादा हो गया, और अगर 50 लगेगा तब तो विद इन 30 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर है। अभी तक तो ऑर्डर इश्यू नहीं हुआ। सुदीप्ता जी कह रहे हैं 50। सर एज पर माय हम्बल ओपिनियन इसमें 25 ही लगेगा, क्योंकि सर देखिए वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की बात है, क्योंकि सर देखिए 15 नहीं लगेगा, 50 भी तो नहीं लगेगा ना सर। अगर आप बोल रहे हैं 25 नहीं लगेगा, मैं बोल रहा हूँ 50 भी तो नहीं लगेगा, क्योंकि 50 कब लगता है? विद इन 30 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर जब इशू ही नहीं हुआ मैं 50% पेनल्टी क्यों दूं? सर अगर आप बोल रहे हैं 25 में फॉल नहीं हो रहा, तो मैं बोल रहा हूँ 50 में भी फॉल नहीं हो रहा। सर मेरे ऐसे 2 केसेस हुए, दोनों केसेस में मैंने यही आर्ग्यू किया कि सर 50 में फॉल तो नहीं हो रहा, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन 25 वाला ही होता है। और या तो सर अगर जनरल पेनल्टी में जाएंगे तो सेक्शन 125, लेकिन जनरल पेनल्टी में जा नहीं सकते सर, क्योंकि जनरल पेनल्टी कब यूज होता है? सेक्शन 125 कब यूज होता है? जब सर कहीं और पेनल्टी प्रेस्क्राइब ना हो। सर जब हमारे यहाँ पे पेनल्टी प्रेस्क्राइब्ड है 25%, तो मैं जनरल पेनल्टी में क्यों जाऊं? तो सर इस केस में कितना परसेंट पेनल्टी लगेगा? 25। और सर लेट मी रिपीट, ये जो 73 74 का पेनल्टी है, ये 74A में सेम है। सर लेट मी शो यू द स्लाइड। दिस इज द स्लाइड सर। ये देखिए सर, खाली इसमें क्या चेंज है? सर मैंने आपको बोला ना 74A में खाली टाइम लिमिट चेंज है। एक तो इश्यू ऑफ एससीएन का, इश्यू ऑफ नोटिस का टाइम लिमिट चेंज है, इश्यू ऑफ ऑर्डर का टाइम लिमिट चेंज है। सर ये आप देखिए दूसरा चीज, सर 30 दिन से 60 दिन हो गए। उसमें जहां 30 दिन का क्राइटेरिया था सर, वो 30 दिन से 60 दिन हो गए। देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं ना, पेनल्टी सेम है सर। इसमें नो पेनल्टी, नो पेनल्टी, 10% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। और सर इसमें क्या लिखा हुआ है? 15%, सॉरी, यस। अब सर इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, 15%, 25%, 50%, 100%। इसका मतलब सर पेनल्टी तो इसमें भी सेम है। मतलब सर जो 73 और 74 की पेनल्टी थी, वो 74A में सेम है, एकदम सेम। अगर फ्रॉड है, विलफुल मिसस्टेटमेंट है या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स है, तो भी पेनल्टी 15, 25, 50, 100। और सर अगर ये तीनों नहीं है तो नो पेनल्टी, या फिर 10,000 और 10% ऑफ द टैक्स विच एवर इज हायर। लेकिन सर एक चीज ध्यान रखने का क्या है, जो हमारा 73 74 अलग है 74A से, कि सर उसमें 30 दिन था विद इन 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, विद इन 30 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर। लेकिन सर इसमें लैंग्वेज क्या है? विद इन 60 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ नोटिस, विद इन 60 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ ऑर्डर। अब सर आप एक चीज देखिए, आप अच्छा चलिए सबसे पूछते हैं, देखते हैं किसका ऑब्जर्वेशन कितना बढ़िया है। सर जो 25% और 50% पेनल्टी है, सर क्या उसका लैंग्वेज ड्राफ्टिंग में कहीं कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? सर जो 25% और 50% की पेनल्टी है, क्या उसकी लैंग्वेज ड्राफ्टिंग में कुछ डिफरेंस दिख रहा है? सर जो 25% और 50% की पेनल्टी है, क्या उसके लैंग्वेज में अदर देन 25 एंड 50, 60 डेज 60 डेज, क्या सर कुछ डिफरेंस दिख रहा है? यस सर, द वर्ड इज इश्यूएंस एंड दूसरा वर्ड क्या है सर? कम्युनिकेशन। अब सर दोनों वर्ड अलग कैसे है? सर मैं एक एग्जांपल पूछता हूं, मैं डिपार्टमेंट, मैं ऑफिसर हूं, मैं प्रॉपर ऑफिसर हूं, मैंने नोटिस इशू कर दिया 1 फरवरी को। मैंने नोटिस इशू करके क्या किया? मैंने नोटिस इशू करके ऑफिस में रख दी। ठीक है सर, मैंने और नोटिस इशू करके 1 फरवरी को ऑफिस में रख दिया, दिन भी लगा दिया, दिन भी सर इशू हो गया उसी दिन। ठीक है सर, अब लेकिन मैंने जो नोटिस को, चिट्ठी को मैंने नोटिस कुरियर किया, मानिए नोटिस पोर्टल पे नहीं डाल के मैंने कुरियर कर दिया। अब लेकिन सर मैंने कुरियर किया, 1 फरवरी को नोटिस इशू हुआ, मैंने नोटिस को कुरियर किया 10 तारीख को, नोटिस सामने वाले को पहुंचा 15 तारीख को। अब सर मैं जो 60 डेज इश्यूएंस ऑफ नोटिस देखूंगा, मैं वो कब से देखूंगा? नोटिस इश्यू कब हुआ? मैं जो 60 डेज फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ नोटिस देखूंगा, मैं वो कब से देखूंगा? सर नोटिस इश्यू कब हुआ?
1 फरवरी को। यस सर, करेक्ट। मनीष जी करेक्ट, सुदीप्ता जी करेक्ट, सर राहुल जी ऑल्सो करेक्ट सर। लेकिन कम्युनिकेशन तो 15 को हुआ ना, इसका मतलब सर देखिए दोनों में डिफरेंस है। एक बोल रहा है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सो कॉल्ड नोटिस, और एक बोल रहा है सर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। इसका मतलब सर अगर कम्युनिकेट हुआ 15 फरवरी को, ऑर्डर के केस के कम्युनिकेट है, लेकिन सर नोटिस के केस में क्या है, इश्यूएंस है। तो सर हमें ये भी ध्यान रखना है कि सर उसमें इश्यूएंस का ये है। सर ये देखिए अभी इसको लेके मेरे को ऐसा लगता है, माय पर्सनल ओपिनियन इज दिस, कि सर ऑफिसर्स इतना अवेयर नहीं है। नहीं तो क्या है सर, ये थोड़ा मिस यूटिलाइज भी हो सकता है ये सेक्शन। क्योंकि सर अगर हम अपीलेट का सेक्शन देखें 107, उसमें क्या बोलता है, हम अपील कब तक कर सकते हैं सर, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर, या फिर क्या होता है सर प्लस 1 मंथ कॉन्डोनेशन फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन सर यहाँ पे देखिए शोकॉज नोटिस में क्या है, विद इन 60 डेज फ्रॉम इश्यूएंस ऑफ शोकॉज नोटिस। लेकिन सर नॉर्मली अभी तक मेरा जो ओपिनियन है या मेरा जो एक्सपीरियंस है, सब लोग क्या देखते हैं सर, कम्युनिकेशन देखते हैं। लेकिन सर इफ वी रीड बिटवीन द लाइंस, द लॉ इज वेरी क्लियर। जिसे लॉ बोल रहा है इश्यूएंस ऑफ नोटिस। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट। तो सर वी आर वेरी क्लियर कि 73, 74 और 74 ए में अगर हम पेनल्टी देखें, पेनल्टी सेम है, बस सर वहां जहां जहां 30 दिन था वहां वहां यहाँ क्या आ जाएगा, 60 दिन। ओके सर ये देखिए चार्ट देख लीजिए, चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट देखिए सर, ये चार्ट है अपना ड्यू डेट का, क्योंकि सर हम जब भी ये चार्ट 73, 74 तक सीमित है सर। देखिए इसलिए चार्ट में मैंने 24-25 नहीं डाला। ये जो चार्ट है ये 17-18 से लेके 23-24 तक है सर। इसमें मैंने 24-25 नहीं डाला। क्यों नहीं डाला, क्योंकि सर 24-25 में क्या हो गया, टाइम लिमिट चेंज हो गया। अब सर इसमें देखिए क्या है, ड्यू डेट ऑफ जीएसटी 9, तो एससीएन इशू करने का डेट क्या है, ऑर्डर इशू करने का डेट क्या है, 73 में अलग सर, 74 में अलग, राइट। क्योंकि सर इसमें लिखा हुआ एक्सटेंडेड ड्यू डेट क्या है कि सर 5 फरवरी 2020, 31 दिसंबर 2020, 31 मार्च। तो सर हम लोग जो देखेंगे एससीएन इशू करने का डेट, वो हम लोग मतलब आप समझ लीजिए 73 के केस में 2 साल 9 महीना देखेंगे। और सर 1-2 केसेस में देखिए क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन इशू करके टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया है। जैसे सर 31 दिसंबर वाला सितंबर में खत्म हो रहा था, तो सितंबर से उन्होंने दिसंबर ले गया, दिसंबर से फिर जनवरी 1 महीना और एक्सटेंड किया, राइट। जो कि मानिए बहुत हाई कोर्ट का जजमेंट भी है कि सर गुवाहाटी हाई कोर्ट का भी जजमेंट है इस केस में कि ये नोटिफिकेशन का जो एक्सटेंशन है ये वैलिड नहीं है। क्योंकि बेसिकली 168A जो फोर्स मेजर क्लॉज है, वो बोलते हैं कि सर कोई ऐसा रीजन होना पड़ेगा जो कि बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है। तो वो बोल रहे हैं कि सर ऐसा बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल कंडीशंस भी नहीं थे। प्लस उन्होंने जो नोटिफिकेशन में लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन बाय द जीएसटी काउंसिल, तो बाद में ये पता चला जीएसटी काउंसिल के माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग से कि सर ऐसा कहीं पे भी रिकमेंडेशन ही नहीं था। बेसिकली जो इन्होंने टाइम लिमिट एक्सटेंड किया, जीएसटी 9 की बात नहीं कर रहा सर मैं बात कर रहा हूं, अगर आप देखोगे जैसा ये वाला देख लिया ना 18-19, तो 18-19 का ड्यू डेट जीएसटी 9 का क्या था, 31 दिसंबर 2020। तो 31 दिसंबर 2020 से अगर हम 2 साल 9 महीने देखेंगे, तो सर मेरा क्या होना चाहिए ड्यू डेट, सितंबर 2023 नहीं होना चाहिए सर। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने नोटिफिकेशन इशू करके सर ये ड्यू डेट को पहले दिसंबर से फिर जनवरी ले गए। तो सर इसमें दिक्कत क्या है, सर इसमें दिक्कत बहुत सिंपल सा है कि आप एक्सटेंड नहीं कर सकते सर। जीएसटी में सेक्शन है 168A, जो क्या बोलता है फोर्स में, जिसमें फोर्स मेजर होता है। तो फोर्स मेजर मतलब क्या है सर, कोई भी ऐसा चीज जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है, जैसे कोविड, तो कुछ भी ऐसा चीज होगा तब सर हमारा पीरियड क्या होगा, एक्सटेंड होगा। नहीं तो पीरियड एक्सटेंड नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सर जब वो नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन में टाइम लिमिट को 3-4 महीने जो भी एक्सटेंड किया, तो सर उसमें उन्होंने रीजन क्या लिखा है नोटिफिकेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन बाय द जीएसटी काउंसिल। जबकि सर जीएसटी काउंसिल के माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग में जब चेक किया गया, तब पता चला कि सर जीएसटी काउंसिल ने ऐसा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं किया था। तो सर इसीलिए बेसिकली काफी 2-3 हाई कोर्ट्स के फेवर में जजमेंट है, 2-3 हाई कोर्ट्स के अगेंस्ट में जजमेंट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट के फेवर में जजमेंट है बेसिकली, आरसीसी के फेवर में, कि वो बोलते हैं सर अगर नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ ऐसा, मतलब रिकमेंडेशन नहीं है जीएसटी काउंसिल का, तो नोटिफिकेशन बेसिकली क्या है, लीगली इनवैलिड है। ठीक है सर। तो सर यही देखिए मैं बता रहा था आपको, टाइम लिमिट का चार्ट है ये बेसिकली बोलता है सर आपका जो जीएसटी 9 का ड्यू डेट होगा, वहां से 2 महीने
2 साल 9 महीने, दैट इज बेसिकली 18 मंथ्स, सॉरी 30 मंथ्स हमें देखने हैं फॉर द इशू ऑफ SCM. बेसिकली 12 to 24 plus 9 दैट इज 33. तो 33 मंथ्स देखने. सर मेरी मैथ्स थोड़ी सी गड़बड़ है. ओके सर, तो 33 मंथ्स मुझे वैसे देखने 2 साल 9 महीने. तो सर वो अगर हम कैलकुलेट करें तो मेरा SCN इशू करने का टाइम लिमिट यही आता है, और सर उसके बाद ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट क्या आता है, ये आता है. लेकिन सर वापस मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो 73, 74 और 74A में है. सर 74A क्या बोलता है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस, 42 मंथ्स. यहां तक तो ठीक है सर. इसमें दिया हुआ आपका 2 years 9 months, या फिर जो भी लैंग्वेज है 3 महीने माइनस कर दीजिए सर, वही निकलेगा. या सर उसमें 5 साल में से अगर हम 3 महीने माइनस कर दे तो दैट इज बेसिकली 4 years plus 9 months, 4 years plus 6 months, 6 महीने माइनस कर दे. लेकिन सर इसमें अलग है. इसका मतलब सर अगर मैं नोटिस पहले साल भी इशू कर दूं तो भी सर मेरे पास ऑर्डर इशू करने के लिए 3 साल है या 4 साल है. लेकिन सर 74A अलग बोलता है. 74A बोलता है सर द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस ऑफ ऑर्डर is 12 months from the date of issue of notice. इसका मतलब सर अगर मैंने 1 जनवरी 2025 को नोटिस इशू किया 2024-25 से रिलेटेड, अब आप बोल रहे हो सर साल खत्म नहीं हुआ आप नोटिस कैसे इशू कर दोगे, कर दिया. कोई भी पॉइंट है सर, कोई महीने में आया, कोई महीने में उनका 2B उनका एक्सेस था, कोई भी रीजन से मानिए कर दिया, तो सर उनको ऑर्डर इशू करना पड़ेगा विद इन 1 ईयर. वो वेट नहीं कर सकते कि अभी ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट ज्यादा है कि सर 4 साल है, 3 साल है, 42 मंथ्स है. क्योंकि सर अगर हम टेक्निकली देखें तो 42 मंथ्स है सर इशू ऑफ टाइम लिमिट ऑफ नोटिस, और 12 महीने है सर टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर. तो सर अगर हम दोनों को प्लस करें तो कितना आ रहा है, 52 मंथ्स. सर 52 मंथ्स आ रहा है, मतलब मेरा कितना हो गया, अगर 52 मंथ्स आ रहा है तो सर मेरा कितना हो गया, 4.5 साल हो गया ना. हो गया नहीं हो गया सर, 4.5 साल हो गया ना. तो सर मतलब 4.5 साल है एडजुडिकेशन के लिए अगर मैं टेक्निकल लेवल पे देखूं तो सर ये चीज हमें समझना है. लेकिन सर 73, 74 में क्या था, आप नोटिस कभी भी इशू करो और आप ऑर्डर कभी भी इशू करो, मतलब बेसिकली टाइम लिमिट के तहत नोटिस इशू करने से लेके ऑर्डर इशू करने को लेके कोई लॉजिक, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं था कि नोटिस अगर आज इशू कर दिया 3 महीने में ऑर्डर इशू करना है. नहीं सर, ऐसा टाइम लिमिट नहीं था. उसमें था कि सर नोटिस आप टाइम लिमिट के अंदर इशू करो, ऑर्डर भी आप टाइम लिमिट के अंदर इशू करो. दोनों के बीच में जो टाइम लिमिट है उससे अपन को मतलब नहीं है, ना लॉ में कोई टाइम लिमिट था. लेकिन सर देखिए 74A जब आया तो 74A में देखिए सर लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 विद इन 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल, वही 3 टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड. सर ये तो ठीक है 42 मंथ्स, तो मतलब इसमें सर कॉमन टाइम लिमिट आ गया, कितना आ गया 42 मंथ्स. लेकिन सर अगर हम टाइम लिमिट टू इशू ऑर्डर का देखें कि टाइम लिमिट ऑफ इशू ऑफ ऑर्डर क्या होगा, तो सर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 12 months from the date of issuance of notice. लेकिन सर 73 और 74 में लैंग्वेज अलग थी. 73 और 74 में लैंग्वेज अलग थी. उसमें था सर यू नीड टू इशू ऑर्डर फ्रॉम 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिटर्न. लेकिन सर इसमें देखो इन्होंने क्या बोला, इसमें उन्होंने बोला सर 73 मतलब 74 एक कॉमन है बेसिकली, तो इसमें इन्होंने बोला सर द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू द ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 6 विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस. इसका मतलब सर अगर मेरा नोटिस इशू हो गया 1 जनवरी 2024 तो सर ऑर्डर इशू होना पड़ेगा 1 जनवरी 2025. लेकिन सर अभी भी बहुत जन या हमारे डिपार्टमेंट ऑफिसर थी उनको सर अभी तक ये फाइन थिन लाइन जो है ये सर अभी ध्यान नहीं है. तो अपने को सर ये चीज ध्यान रखना है. प्लस सर इसमें एक चीज और है सर, अगर 73, 74 में टाइम लिमिट खत्म हो गया तो सर और कोई प्रोविजन नहीं था टाइम लिमिट बढ़ाने का. सर अगर 73, 74 में टाइम लिमिट खत्म हो गया तो सर और कोई प्रोविजन नहीं था मेरा टाइम लिमिट बढ़ाने का. उन्होंने नोटिफिकेशन से बढ़ाया, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, वो भी चलिए गुवाहाटी हाईकोर्ट या बहुत सारे हाईकोर्ट के फेवरेबल जजमेंट आई, तो सर इसलिए टेक्निकली आप वो बोलते हैं बढ़ाना नहीं है. लेकिन सर आप देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया बढ़ाने का. सर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट where the proper officer is not able to issue the order within the specified period, the commissioner or an officer authorized by the commissioner senior in rank to the proper officer but not below the rank of, that is JC, may have the regard for issuance of order in regard to subsection 6 to be recorded in writing before the expiry of the specified period, extend the said period further by maximum 6 months. इसका मतलब सर ये जो हमारा टाइम लिमिट है इश्यू ऑफ ऑर्डर का, ये वैसे तो 12 महीना है,
सर हमारा जो टाइम लिमिट है जो इश्यू ऑफ ऑर्डर का वो वैसे तो सर 12 महीना है, अग्री, लेकिन सर इसको 18 महीना कर सकते हैं अगर प्रॉपर ऑफिसर से ऊपर जो ऑफिसर है दैट इज मिनिमम जेसी लेवल, मिनिमम जेसी लेवल अगर उसको ऑथोराइज इन राइटिंग कर दे। बेसिकली रीजंस तो होना ही पड़ेगा, लेकिन सर अगर रीजंस और वही कर दे तो सर वो 6 महीना बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब सर अगर नोटिस इशू है 1 जनवरी 2024 2025 और ऑर्डर इशू अगर 1 जनवरी 2025 तक 26 तक नहीं हुआ और सर आपने ऑफिसर को बोल दिया कि सर ये तो चले टाइम लिमिट में ऑर्डर इशू नहीं हुआ, अब ये नोटिस का कुछ नहीं कर सकते, तो सर वो हायर ऑफिसर से जाके परमिशन लेके आपका 6 महीना बढ़ा सकते हैं। इसीलिए सर कभी भी अगर ऐसा हो तो सर हमें अगले 6 महीने तक उसको नहीं बताना है। अगर 6 महीने पास हो जाए दैट इज टोटली 18 मंथ्स, उसके बाद सर आप कम्युनिकेट कीजिए, तो सर उसके बाद उनके पास भी पावर नहीं है उसको और एक्सटेंड करने की। अब सर देखिए ये नया टाइम लिमिट है जो मैंने लिखा है, ये देखिए। अब सर ये मैंने कौन सा चार्ट बनाया, ये मैंने बनाया 24-25 से, दैट इज 24-25 25-26 26-27 27-28। तो देखिए ड्यू डेट ऑफ 9, अज्यूमिंग सर टाइम लिमिट नहीं बढ़ेगी, टाइम ड्यू डेट वही रहेगा। तो सर देखिए क्या 31 दिसंबर 2025 31 दिसंबर 2026 2027, तो वहां से सर देखिए एससीएन इशू करने का सर इसमें कॉमन है, इसमें 2 डेट का झमेला नहीं है सर, फ्रॉड हो ना हो, विलफुल मिसस्टेटमेंट हो ना हो, कुछ भी हो सर। और हाँ सर पेनल्टी में झगड़ा अभी भी है, पेनल्टी में झगड़ा खत्म नहीं हुआ सर। 74A में पेनल्टी अभी भी अलग अलग है, 73 की अलग 74 की अलग, मतलब बेसिकली सप्रेशन और उसके लिए अलग अलग है। लेकिन सर 73 में 74A में सर टाइम लिमिट का झगड़ा तो इन्होंने खत्म कर दिया, टाइम लिमिट का झगड़ा तो इन्होंने खत्म कर दिया एससीएन इशू करने का, ऑर्डर इशू करने का, क्योंकि सर उसमें 3 साल 5 साल या 2 साल 9 महीने और 4 साल 6 महीने था, वो झगड़ा इन्होंने यहाँ पे खत्म कर दिया। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला सर, ये देखिए एससीएन टू बी इशूड कितने टाइम में, विद इन 42 मंथ्स, ऑर्डर टू बी इशूड विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम एससीएन। तो सर ये देखिए क्या है, अब ये तो मैंने मैक्सिमम टाइम लिमिट लिखा है, ये जो मैंने साइड में लिखा है ना, ये सर मैं आई एम अज्यूमिंग कि नोटिस आपका लास्ट डेट में इशू हो। सर ये जो मैंने ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट लिखा है, ये मैंने क्या अज्यूम करते हुए लिखा है, आई एम अज्यूमिंग कि सर ऑर्डर आपका लास्ट डेट में इशू हो। तो सर ये पॉइंट्स है, आई होप टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, 6 ऑलरेडी बच चुके हैं। तो सर ये कुछ कुछ क्वेश्चंस थे। तो सर बेसिकली देखिए ये 73 और 74 को अगर हम कंपेयर करेंगे विद 74A, तो लगभग कहीं ना कहीं सर सारी चीजें सेम है। बस सर जो मैंने आपको टाइम लिमिट बताया 42 मंथ्स का, 12 मंथ्स का, और सर ऑर्डर इशू करने का, एससीएन इशू करने का। दूसरा चीज सर जो मैंने आपको टाइम लिमिट बताया, कौन सा टाइम लिमिट बताया, 60 डेज वाला, कि सर वहां 30 डेज था, यहाँ 60 डेज हो गए। इसको छोड़ के सर बेसिकली कुछ खास चेंज नहीं है। अच्छा सर मेरे को एक चीज आपसे खाली और डिस्कस करना है, वो डिस्कस करके फिर सर वाइंड अप कर देंगे सेशन। सर मेरे को आपसे डिस्कस करना है सेक्शन 76। सर सेक्शन 76 क्या बोलता है, कोई बता सकते हैं चैट में प्लीज? सेक्शन 76 क्या बोलता है, कोई बता सकते हैं चैट में? बेसिकली सेक्शन 76 का मेन सार क्या है? क्योंकि सर जब भी हम लोग 73 74 या 74A पढ़ रहे हैं ना, बिना 76 के सर ये अधूरा है। क्योंकि सर 76, क्योंकि सर अभी भी बहुत जन को मिसकंसेप्शन है कि सर अगर मैंने शॉर्ट पेड ऑफ टैक्सेस किया या टैक्स कलेक्ट किया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया, मतलब सर अगर मेरा बैलेंस शीट में टर्नओवर दिखा रहा है 10 करोड़, मेरे जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 में टर्नओवर दिखाया 5 करोड़, तो सर बाकी का 5 करोड़ 73 74 का टाइम एक्सपायर होने के बाद रिकवर नहीं हो सकता। सर बहुत जन को अभी भी ये मिसकंसेप्शन है, एज पर माई ओपिनियन, हो सकता है नहीं भी हो, लोग एजुकेट हो गए हो अब काफी। सर 76 देखिए क्या बोलते हैं, 76 बहुत सिंपल सी बात बोलता है। 76 बोलते हैं सर अगर आपने कोई टैक्स कलेक्ट किया, सर लेट मी रिपीट, यस श्योर सर, समराइजिंग इन 5 मिनट्स। सर देखिए 76 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 76 क्या बोलता है, 76 बोलते हैं सर अगर हमने टैक्स कलेक्ट किया पब्लिक से लेकिन सर सरकार को जमा नहीं कराया, तो सर उसमें अपना लग जाएगा सेक्शन 76। और सर सेक्शन 76 में कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। इसका मतलब सर अगर हमने टैक्स कलेक्ट किया लेकिन रेवेन्यू को जमा नहीं कराया, तो सर सेक्शन 76 आपका 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी इशू हो सकता है। और सर लेट मी करेक्ट, ये लेट मी से कि सर लेट अस अज्यूम ए सिचुएशन कि सर मेरा बैलेंस शीट में टर्नओवर है 10 करोड़, लेकिन मैंने 1 3B में क्लाइंट ने दिखाया टर्नओवर 7 करोड़ और उन्होंने
टाइम रिटर्न लगा दिया, सब कुछ हो गया, 990 में लग गया 7 करोड़ दिखा के, या माने 990 नहीं लगाया। अब सर क्या हुआ, 5 साल खत्म हो गए, 73 74 का टाइम लिमिट खत्म हो गया, मानिए 22 23 या 23 24 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सर क्या होगा, फिर भी सर अगर 4 साल पार हो गए, 10 साल भी क्यों ना पार हो जाए, स्टिल सर द रिस्क इज देयर। रीजन बिंग सर 76 बोलता है कि सर अगर हमने कोई टैक्स कलेक्ट किया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो वो ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर नोटिस देके कभी भी रिकवर कर सकता है। सर उसमें कोई टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होता सेक्शन 76 में। हाँ लेकिन सर ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट है। ऑर्डर इशू करने का टाइम लिमिट क्या है सर? सर उसमें ऑर्डर इशू का टाइम लिमिट है सर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ SCM। और सर लेट मी आंसर कि उसमें पेनल्टी भी उनके हिसाब से तो सर देखिए इक्विवेलेंट है कहीं ना कहीं, कि उन्होंने उसमें क्या लिखा है लैंग्वेज, जस्ट ए सेकेंड, ये देखिए, पेनल्टी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। तो सर देखिए जब भी हम लोग 73 74, मैंने आपको बोला ना सर 74 है बस एक नया ड्राफ्टिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं सर पूरा लैंग्वेज आप जब कंपेयर करोगे ना वर्ड टू वर्ड, तो सर हूबहू सेम, एक्सेप्ट 3 थिंग्स, टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस, टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ ऑर्डर, और सर पेनल्टी का जो टाइम लिमिट है दैट इज 30 डेज की जगह उन्होंने अब उसको क्या वो कर दिया है सर 60 डेज कर दिया। तो सर ये सब देखिए मिला के हमें स्टडी करना पड़ेगा एडजुडिकेशन। बाकी सर 74A में देखिए ऐसी कोई नई चीज नहीं है, जो 73 74 में अभी तक चल रहा था 74A में भी सर वही चलेगा। लेकिन सर बस वही बात है, वी नीड टू आल्सो स्टडी 75 76। जब हम उसको कंबाइंड स्टडी करेंगे 74A के साथ, तब सर एक कहीं ना कहीं और बेटर पिक्चर निकल के आएगी। ओके सर, नाउ वी कैन टेक द क्वेश्चन आंसर। मैंने प्रिपेयर और भी कुछ कुछ किया था, लेकिन ठीक है वाइंड अप करते हैं क्योंकि सर टाइम इज रनिंग शॉर्ट। Thank you so much, Madhukar ji, for such an interactive session. So let us move to the question answer round. Even we hope कि थोड़ा सा और time रहता तो we could have gone deeper into the subject matter. यस सर। Nevertheless, till now it's going very interactive and very good. So I will ask all the participants if they have any query, they can just raise their hand. I can allow them to speak, or they can write it on the chat box so that we can take up the question. And meanwhile, sir, I had a query. We're talking about the communication. So, in case the officer issues the notice in the portal, correct, and they are sending it via post as well. So, in that case, the communication will be the date of upload on the portal or date of receipt of the order. सर डेट ऑफ अपलोड माननी है, क्योंकि सर वो एक वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस है। जब डेट ऑफ अपलोड अगर सर कम्युनिकेशन हो गया पोर्टल पे, तो सर वो एक वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस मान सकते हैं उसको। बट सर अभी तो अपना कुछ एक जजमेंट्स आया हुआ है ना रिगार्डिंग इसमें देखिए मल्टीपल जजमेंट्स है, आई अग्री। अभी कुछ दिन एक हफ्ते पहले एक जजमेंट आया है इसमें कि सर पोर्टल पे अगर अपलोड है और चिट्ठी हमने नहीं भेजा या उनको कम्युनिकेट नहीं किया तो नहीं माना जाएगा। लेकिन सर देखिए मेरा जो एक्सपीरियंस या ओपिनियन है डिपार्टमेंट के साथ या वैसे भी, तो मेरे को सर ऐसा लगता है ये देखिए, क्योंकि सर सेक्शन में मेंशन किया है जो कि सर्विस ऑफ नोटिस का क्या क्या तरीका हो सकता है, तो सर उसमें देखिए अपलोडिंग ऑन द पोर्टल इज ए वैलिड वे ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। और अगर सर वो अपलोड हो गया पोर्टल पे तो हम लोग मान सकते हैं सर। लेकिन सर इसमें एक चीज है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सर जैसे एक मैं केस अभी मेरे साथ हुआ इन दिनों कि सर जैसे ऑर्डर अपलोड हो गया 1 जनवरी को। अब सर मेरे पास मेल नहीं आया, या पता समझिए मेल मेरे पास नहीं आया, पोर्टल पे अपलोड हो गया, लेकिन अब सर मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आया, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन और कोई तरीका से नहीं आया। अब सर एज ए टैक्स पेयर मैं लायबल तो नहीं हूं कि मैं एडिशनल नोटिसेस या नोटिसेस वाले वो खोलूं। और सर वैसे कभी पता भी नहीं चलता है, नॉर्मली अगर मैं रिटर्न फाइल करने के लिए खोलूं तो मैं अगर 3 महीने तक नहीं खोलूंगा वो टैब, तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि वो आया है। अब सर देखिए अगर हम अपीलेट का प्रोविजन देखिए 107, तो उसमें बोलता है अपील कब से फाइल हो सकता है, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर प्लस 1 month कॉन्डोनेशन। अब सर देखिए सर उसमें पॉइंट क्या है कि सर मैंने जजमेंट या मैंने ऑर्डर देखा 3 महीने बाद, ऑर्डर पोर्टल पे अपलोड हो गया 1 जनवरी को, मैंने देखा सर 1 अप्रैल को मेरे को पता चला यार ऑर्डर आया हुआ, या मानी 1 मई को पता चला। हम लोग अपील का टाइम लिमिट खत्म कर देते कॉन्डोनेशन का भी, 3+1 मानिए 5 महीने बाद पता चला, जून में पता चला। अब सर जून में पता चला तो टेक्निकली अगर हम देखें तो डेट ऑफ कम्युनिकेशन से देखते हैं, वहां तो सर्विस ऑफ नोटिस नहीं है 107 में,
तो टेक्निकली अब डेट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है सर? मेरे लिए अगर वैलिडली सर 1 जून है, अब लेकिन सर अगर उनके हिसाब से देखिए, उनके हिसाब से तो 1 जनवरी है। अब सर लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सर जब हम अपील फाइल करते हैं ना, तो सर अपील फाइल करने टाइम में जो डेट ऑफ कम्युनिकेशन है वो सर एडिटेबल फील्ड है। मतलब सर डेट, उसमें 2 फील्ड होते हैं, एक सर डेट ऑफ ऑर्डर, डेट ऑफ कम्युनिकेशन। अब सर डेट ऑफ ऑर्डर तो फिक्स है, उसको हम एडिट नहीं कर सकते, लेकिन सर डेट ऑफ कम्युनिकेशन हम एडिट कर सकते हैं। तो सर हमने एक अपील इस बेसिस पे एक्सेप्ट करवाया कि हमने पोर्टल पे देखा 1 जून को, हमें तभी पता चला, हमें कोई मेल नहीं आया, हमें कोई चिट्ठी नहीं आई। तो सर एंड वी आर एज ए टैक्स पेयर वी आर आल्सो नॉट लायबल कि हम जाके वो टाइप चेक करें, क्योंकि अगर एडिशनल नोटिस में इशू होता है तो पता भी नहीं चलता। तो मैंने 4-5 महीने बाद देखा, तब मुझे पता चला, तो मेरा डेट ऑफ कम्युनिकेशन वही है। अब सर इस बेसिस में हमने अपील एक्सेप्ट करा और अब तो वो अपील चलिए चल रहा है। बट सर ये भी ग्राउंड हो सकता है, इंटरेस्टिंग पॉइंट था सर ये हमारे लिए। Great, great. So I think the whole session has been beautifully explained. So there is no query from any of the participant. So I will move on to the thank you note. And obviously, a very special thank you to our speaker, CM Madhukar Agarwal ji, for that incredibly insightful and practical session on the interplay between section 73, 74, and 74A. And the ability to break down such complex provision and make them so accessible is truly appreciated, sir. And the depth of your expertise and your real world example have provided immense value to our audience today. And the engagement on the chat box has proven it widely. So I thank you all the participant as well as to our speaker of the day for sharing your time and knowledge with us on the Golden Chacha. And again, we'll meet you all on Friday, same timing, 5 to 6 o'clock in the evening. So thank you so much, Madhukarji, for accepting our invitation to be a speaker. And thank you all the participants for such a vibrant session. Thank you so much, everyone. Thank you.